اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل اورنگ آباد سے قریب جو سرزمین اولیاء ولیوں کے سرزمین کہی جاتی ہے، خلد آباد سے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لونی میں مدرسہ ضیاء العلوم کی جانب سے ایک شاندار اجلاس رکھا گیا تھا، جس کی صدارت جامعہ عمر بن خطاب کنج کھیڑا کے ایک عالم دین اور ایک ذمہ دار شخص حضرت مولانا نور علی صاحب نے فرمائی، اور مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا۔ آس پاس کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور بڑی تعداد میں ہندو بھائی بھی اس اجلاس میں شریک رہے۔ مدرسہ ضیاء العلوم کے بچیوں نے بہت شاندار پروگرام پیش کیا۔ اس کے بعد تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ ایجوکیشن، تعلیم کی اہمیت پر میری بات ہوئی، جوانوں کو نشہ سے روکنے کی ہم نے بات کہی، اور ملک سے نفرتوں کو کیسے ختم کیا جائے اور ایکتا، صدبھاونا، پیار، محبت، امن، شانتی کا ماحول کیسے بنایا جائے، اس پر زبردست بات ہوئی۔ ہندو بھائیوں نے بھی مل کر شکریہ ادا کیا۔ خیر، لونی کا یہ اجلاس بڑا کامیاب اجلاس رہا۔ پہلی بڑی اچھی خبر جس کو سنانے میں آج میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ 3 نفرتی نیوز چینلوں پر کارروائی کا اعلان ہو گیا ہے، جی ہاں، جس میں نمبر 1 نفرتی چنٹو امیش دیوگن، نمبر 2 امن چوپڑا، اور نمبر 1 پر رہنے والا جو ابھی فی الحال نمبر 1 پر ہی ہے، سدھیر چودھری۔ ان تینوں کا پروگرام شامل ہے۔ نیوز براڈ کاسٹنگ اتھارٹی نے ٹائمز ناؤ بھارت پر 1 لاکھ اور نیوز 18 پر 50,000 کا جرمانہ لگایا ہے۔ لو جہاد شو پر آبجیکشن بھی کیا ہے۔ جی ہاں، یہ لو جہاد جیسا شو چلا کر یہ نالائق صرف اور صرف ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان تینوں نفرتی نیوز چینلوں پر کارروائی کا اعلان ہو گیا ہے۔ 7 دن کے اندر یہ ان کے ووادت اور گھٹیا قسم کے شیطانی پروگرام کو ان کو ہٹانے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ نیوز براڈ کاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈز اتھارٹی یا NBDSA نے نفرت انگیز شوز دکھانے پر 3 ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کی ہے، جس میں مشہور نیوز اینکر جو بھونکتا ہے امیش دیوگن، ایسے ہی امن چوپڑا اور سدھیر چودھری کا تو
लाल नंबर 1 में इसका भी नाम शामिल है, तो सुधीर चौधरी का शो भी इसमें शामिल है। श्रद्धा वालकर कत्ल केस में दिखाए गए शो के लिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आइए बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र असेंबली के इहाते में गैंग वार शुरू हो गया है। जयंत पाटिल का बड़ा बयान आया। जयंत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली का इलाका भी अब गैंग वार का शिकार हो गया है। वजीर दादा भूसे और एमएलए महेंद्र थोरवे आपस में लड़ पड़े। कानून साज काउंसिल में हंगामा हुआ। ऐवान की कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई है। शिंदे की शिवसेना के 2 एमएलए आपस में लड़ पड़े, जिसकी वजह से अपोजिशन ने इस मामले को ऐवान में उठाकर शिंदे हुकूमत पर जबरदस्त तंज किया है। शरद पवार ग्रुप के जयंत पाटिल ने इस झगड़े को असेंबली के इहाते में होने वाली गैंगवार कहा है, जबकि कानून साज काउंसिल में इस मामले को लेकर स्पीकर और अपोजिशन के दरमियान जमकर तीखी बहस हुई और ऐवान की कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। जी हाँ, खबरें आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कबूल कर ली है। ज्ञानवापी विवाद में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद के इस हुक्म को चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया, जिसमें कहा गया कि हिंदू फरीकैन के वाराणसी की सिविल अदालत में जेर इल्तवा मुकदमात पर इबादतगाहों से मुताल्लिक कानून 1991 के सबब समाअत बंद नहीं की जा सकती। यह मुकदमा 1991 में हिंदू इबादत गुजारों और देवताओं की जानिब से दायर किया गया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में इबादत का हक और मुतनाज़ा मकाम पर मंदिर की बहाली का मुतालबा किया गया था। खैर, 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। इस केस में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और दीगर मुस्लिम फरीकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें मुस्लिम फरीक की मिल्कियत का मुतालबा करने वाली 5 दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि वर्शिप एक्ट 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी कमेटी के जरिए मंदिर की बहाली से मुताल्लिक मुकदमे को इस मामले से मुताल्लिक दीगर जेर इल्तवा मुकदमात के साथ जोड़ दिया है। आइए, महाराष्ट्र की सियासी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि शरद जी पवार ने अपने गांव, अपने शहर बारामती में एक नमो रोजगार मेला वहां मुनक्किद किया। इस मौके पर शरद जी पवार ने शिंदे और फडणवीस यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को शरद पवार ने इस मेले में आने की और घर पर खाने की गुजारिश की, दावत दी, मगर खबरें है कि दोनों ने दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन दोनों ही ने शरद पवार की इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। रियासती हुकूमत नमो रोजगार मेला बारामती में मुनक्किद कर रही है। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला अजीत दादा पवार मौजूद रहेंगे। चूंकि वजीर आला और नायब वजीर आला बारामती आ रहे थे, शरद पवार ने इन तीनों को गोविंद बाग में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर रात के खाने पर मदऊ किया था। शरद पवार ने पहले फोन किया, फिर एक बार खत भेजा और तीनों को अपने घर रात के खाने की गुजारिश की। शरद पवार की इस दावत पर वजीर आला और नायब वजीर आला ने रिएक्शन जाहिर किया है। आइए, महाराष्ट्र की लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है कि लोकसभा इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी में कोई तनाज़ा और कोई विवाद नहीं है। महाविकास अघाड़ी की फेरिस्त लिस्ट सामने आ गई, जाहिर हो गई। बताया जा रहा है कि 18 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, उद्धव ठाकरे 20 और शरद पवार ग्रुप को 10 सीटें मिली है। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन से पहले लोकसभा इलेक्शन से मुतालिक सीटों की तकसीम से मुतालिक तस्वीर साफ होने के बाद अब किस सीट पर कौन लड़ेगा, इसे लेकर एक फेरिस्त सामने आ गई है। महाविकास अघाड़ी की इत्तेहाद
इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान लोकसभा इलेक्शन में सीटों से मुताल्लिक कुछ इस तरह का फार्मूला तैयार करने की बात कही जा रही है कि 18 सीटों पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे 20 और शरद पवार ग्रुप को 10 सीटें दी जा रही है। आइए बड़ी खबर आ रही है बाबा आसाराम को लेकर। जी हाँ, खबर आ रही है कि आसाराम की सजा खत्म करने की जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को निकाल कर फेंक दिया। आसाराम को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज रेप केस में जेल की सजा काट रहे खुद साख्ता मजहबी रहनुमा आसाराम बापू को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उसकी दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सेहत की बुनियाद पर अपनी सजा को खत्म करने का मुतालबा किया था। दरखास्त की समाअत जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपा दत्ता की बेंच ने की। आसाराम की जानिब से सीनियर वकील मुकुल ने अदालत में अपना मुकदमा पेश किया। खराबी सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने सजा मुअत्तल करने की दरखास्त की और कहा कि आसाराम को दिल का दौरा पड़ा है और वो ओपन हार्ट सर्जरी का खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आसाराम हिरासत में रहते हुए इलाज कराने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी सजा को मुअत्तल किया जाना चाहिए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। जजों ने आसाराम के वकीलों से राहत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, 150 साल पुरानी मस्जिद पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। सुनहरी मस्जिद दिल्ली, जो 700 साल पुरानी मस्जिद और 900 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब 150 साल पुरानी मस्जिद सुनहरी मस्जिद की बारी है। बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ट्रैफिक की तकलीफ का हवाला देकर आवाम से राय मांगी गई और आवाम से तजावीज़ तलब करने के दौरान अब यह मामला अदालत तक पहुंच गया है। अदालत में सुनवाई जारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि NDMC यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने दिल्ली में वाक़ सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए लोगों से राय मांगी है। ताहम लोगों की तजावीज़ आने से पहले ही यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। मस्जिद के इमाम 150 साल पुरानी सुनहरी मस्जिद के मुजव्वज़ा इन्हदाम के मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जिस पर 28 फरवरी को समाअत हुई थी। बुध की समाअत के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि कौमी राजधानी में सुनहरी बाग मस्जिद के मुजव्वज़ा इन्हदाम का मामला इसकी सिफारिश के लिए HCC को भेज दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम की एक अर्जी पर समाअत कर रही थी, जिसमें NDMC के 24 दिसंबर के अवामी नोटिस को चैलेंज किया गया था, जिसमें मस्जिद को हटाने के बारे में आम लोगों से मशवरे मांगे गए थे। खैर, 150 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की नापाक साजिशें तैयारी चल रही है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ex-CM लाडले हरदिल अजीज चहीते वजीर आला उद्धव जी ठाकरे को बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। संजय राउत ने इंकशाफ किया और कहा कि हम नीतीश की तरह पलटू राम नहीं है। नीतीश की तरह अगर हम पलटेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने जुमा के रोज बड़ा इंकशाफ करते हुए ये बात कही है। TV9 मराठी के खास प्रोग्राम लोकसभा 6 महासंग्राम में शिवसेना ठाकरे ग्रुप के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत से पूछा गया कि क्या ठाकरे ग्रुप के सरबराह उद्धव ठाकरे को दोबारा बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है।
संजय राउत ने इसका जवाब देते हुए बड़ा इंकशाफ किया है। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने एक अवामी जलसे में बताया है कि वजीर आजम मोदी के साथ मुलाकात में क्या बात हुई। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के दरमियान मुलाकात में महाराष्ट्र की सियासत पर बातचीत हुई। वजीर आजम मोदी को लगा कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आना चाहिए। हमारी मीटिंग में हमने तबादला ख्याल किया कि हमें इन पार्टियों के साथ क्यों जाना चाहिए जिन्होंने हमें धोखा दिया है। हमारी पार्टी को खत्म करने की साजिश की इन पार्टियों ने। राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि बीजेपी के कई बड़े लीडर अब उद्धव ठाकरे को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहे हैं। आइरान दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि दिल्ली में कई जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और अब यह मामला अदालत पहुंचा कि दिल्ली में गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोजर की कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह जुमला कहा कि फिर तो ऐसे तो कोई इंडिया गेट पर भी घर बना लेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली में गैर कानूनी तामीरात की सूरत हाल ऐसी है कि कोई इंडिया गेट खरीद कर वहां मकान बना लेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा ने खुसूसी टास्क फोर्स के जरिए द्वारका समेत कई इलाकों में जारी मुजरिमाना कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बुलडोजर और मुतासरा इमलाक के मालिकान ने अलग अलग दरखास्तें दायर की थी जिस पर कार्रवाई को फौरी तौर पर रोकने की अपील की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को रोकने से इनकार कर दिया। हल्द्वानी फसाद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि हल्द्वानी फसादात जो भी हुए हल्द्वानी में ये किसकी बदमाशी से हुए हैं, लेकिन खैर मुसलमानों के कोई ही नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमान ही शहीद हुए हैं और अब मुसलमानों की ही गिरफ्तारी की जा रही है। अभी खबर आ रही है कि हल्द्वानी में 5 मुस्लिम औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन पर तशद्दुद फैलाने का इल्जाम नैनीताल के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी मीना के मुताबिक पुलिस ने पूरे वाकये की वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी की जांच के बाद कुछ लोगों पर पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्विस खवातीन की भी शनाख्त की। उनमें से 5 खवातीन को गुज़िश्ता कल गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार खवातीन में शहनाज ज़ौजा मरहूम जमील अहमद और ऐसी 4 खवातीन हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अब वहां पर मुस्लिम औरतों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी हुकूमत की एकतरफा कार्रवाइयों से पूरा मुल्क परेशान है कि आखिर कितनी नाइंसाफी मुल्क में चल रही है। नाज़रीन, रात 3 बजे मैं वहां से लौटा। परसों भी भीड़ में था, औरंगाबाद में था। रोजाना 3-4 बज रहे हैं और अब आइंदा कल इंशाअल्लाह मध्य प्रदेश में 2 अजीम शान प्रोग्राम होने जा रहे हैं। सुबह सुबह एक प्रोग्राम होने जा रहा है मध्य प्रदेश के मदरसा फैजुल उलूम सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद में अजीम शान जलसे दस्तारबंदी होने जा रहा है। यानी 3 मार्च बरोज इतवार को सुबह 8:30 बजे ये प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। मैं आज रात में 2 बजे यहां से निकलूंगा और फिर उसी दिन वहां से फिर मैं एक लंबा सफर करूंगा और मध्य प्रदेश का ही एक मशहूर गांव है बकायन, वहां पर मकतब हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु बकायन जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश का जलसे दस्तारबंदी और तकसीम असनाद का एक प्रोग्राम है और इस्तकबाल रमजान पर मेरा बड़ा अहम बयान होगा। तो 3 मार्च को यानी इतवार के दिन ही बाद नमाज इशा मकतब हसन बिन साबित से लगकर बकायन में एक शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है शाहजहांपुर जिले में मध्य प्रदेश में। तो ये 2 प्रोग्राम आइंदा कल मध्य प्रदेश में होंगे। मैं आप तमाम हज़रात से स्पेशली दुआ की अपील करता हूं कि अल्लाह मुझे खूब ताकत दे, हिम्मत दे और अल्लाह ताला इन खिदमात को कबूल करे और अल्लाह ताला हर तरह से हिफाजत फरमाए, क्योंकि एक भी दिन खाली नहीं है। रोजाना सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर भी कर रहा हूं और आप तक खबरें भी पहुंचा रहा हूं।